السلام علیکم۔ پارلیمنٹ میں ہونے والی ایک اہم پیش رفت نے اسی ماحول میں ہلچل مچا دی۔ اجلاس کے دوران سخت جملوں کا تبادلہ، مختلف ارکان آمنے سامنے، صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ آصف اور سہیل افریدی آمنے سامنے، عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کہنا مہنگا پڑ گیا۔ انی مریض نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے سانحہ 9 مئی کرایا، ان لوگوں نے ابھی بھی اس سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، سہیل افریدی کا پارا آئی خواجہ آصف کی درگت بنا دی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے تم لوگوں سے۔ آواز کا گلا گونج رہے ہیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات 9 مئی کے موقف سے نہیں ہٹے۔ آج بھی یہ 9 مئی کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، شہداء ہمارا ہے، یہ سب جلد یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ہم رونا دھونا نہیں کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سزا دی جائے گی۔ گالیاں دیتے ہیں اس ہاؤس کی تسلیم اسپیکر، یہ سب جعل سازی ہے۔ یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں، کل بھی 9 مئی والے ہیں، آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں۔ ان کا موقف نہیں بدلا۔ یہ اس کا مسلط ہو کر کسی کے تھرو ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے معیشت جو ہے وہ اچھی طرف جا رہی ہے۔ جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی روزانہ پینترے بدلتا تھا، کبھی پوری ایکسٹینشن، پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا باجوے کو، کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا، کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتا تھا۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے، میں ان کا سفارشی تھا، ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، آج کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ میں اس ہاؤس میں پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دو۔ جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پہ یہ چلے گئے۔ آپ نے خود سنا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک شرم کی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس پہ پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے، لیکن ان کو نہ شرم آ جا رہی ہے نہ حیا آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات سنیں، ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں۔ ان کا اس ملک میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو۔ اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں، اس ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے۔ ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے۔ اور جب اس موضوع پہ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلا گونج رہے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے۔ جو یہ مسئلے اٹھانا چاہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا، اس ہاؤس میں جواب دوں گا، لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے، متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں۔ آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیسفیمی جو ہے کمٹ کی تھی۔ لوگ ذاتی جھگڑوں پہ بلیسفیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے
कोई ना कोई अपने मौक़िफ़ का, मुतहदा मौक़िफ़ का इजहार करे। सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए, सारे पाकिस्तान में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली इसके ऊपर मुतहद है और इस मौका और एक मौक़िफ़ के साथ अपने अक़लीती भाइयों को, अपने ईसाई भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने सिख भाइयों को, अपने पारसी भाइयों का, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। जनाब वाला, मैं दूसरा मसला जो कल अज़्म से काम का जो एपेक्स कमेटी ने, आपको पता होना चाहिए कि एपेक्स कमेटी जो है आज से 5-6 साल पहले जो है वजूद में आई, जब जो है पेशावर वाला आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई, उसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी थी, पीटीआई उसमें पार्टिसिपेट करती रही। आज जो है हम उसकी तरफ जो है एक कदम बढ़ा रहे हैं, उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, उसको लेके काबीना में जा रहे हैं, उसको काबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे, इस हाउस में इस मौजू के ऊपर डिबेट भी करेंगे। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसको सियासी मुफादात के का बहाना बना के उस पर्पस को, उस मौजू को जो है निशाना बनाया जा सके। अगर इनका कोई एतराज़ है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मसला इस हाउस में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये भी उस पर बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है, अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आप जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं, ये इस हाउस की तज़हीक करते हैं, ये करें बातें। बिजली यह चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईमान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। इनकी औकात है, ये वो दिखा रहे हैं। वो भी ग्रोह की या सियासी पार्टी का इख्तिलाफ जो है हो, यहाँ पे अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। मज़हब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अक़लीतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये फलाना जो है आईजीपी है, फलाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फलाना डीजीआई सही है कि वो संग ग्रां जो हायल है, रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के राहरू है, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। क्या असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में हकीर हो तुम। वतन का पास ना तुम्हें था ना होगा कभी, वतन का पास ना तुम्हें था ना कभी होगा तुम्हें, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। स्पीकर साहब, हम पर किसी ने किताब नहीं लिखी, लेकिन आमरों की गोद से, डिक्टेटरी की गोद से जो इनकी पार्टियां वजूद में आई हैं, इन पर किताबें लिखी गई हैं। नो हायर हानर किताब है,
कंडोलीजा राइस ने लिखी है, और इसमें जो ये बार बार चीख कर कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें बाकायदा एक एक लफ्ज लिखा हुआ है कि इनकी जो लीडरशिप है वो परवेज मुशर्रफ से किस तरह राब्ते में थी, कब कब राब्ते में थी और क्या क्या हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पढ़ना आता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना आता है, हमने पढ़ा है, अगर आपको किताब पढ़ना आता है तो आप वो किताब पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। स्पीकर साहब, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम मानते भी हैं, ये इस पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ किताब है जिस पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन मसला ये है कि इसको मानने वाला कोई नहीं है। हम तो बोलते हैं कि आईन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन अगर आईन इस तरह हम उठा के पढ़ लें तो ये हमने मैट्रिक तक ये भी पढ़ा था कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आज तक हमने तो वो इंप्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि राइट टू असेंबल, हमें ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें, लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे? हमने दो जलसे किए स्पीकर साहब परसों के अलावा, एक इस्लामाबाद में किया है, एक लाहौर में किया है, एक गमला भी हमने नहीं तोड़ा। हम वहां गए, अपना जलसा किया, वापस पुरअमन तरीके से आए। लेकिन परसों जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने जो जुल्म परसों किया या जो 2 साल से करते आए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जमीन और आसमान का फर्क है। इन्फ्लेशन उससे ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे इंतहाई कम। पहले -0.2 पर था, अभी जो है 2 तक पहुंच गया है। इन्फ्लेशन इनकी हुकूमत में 38% तक स्पीकर साहब पहुंच चुका था, हमारी दौरे हुकूमत में वो 12% था। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इनका जो ट्रेड डेफिसिट है स्पीकर साहब, $38 बिलियन जो है वो हमारा एक्सपोर्ट है, और $63 बिलियन हमारा इंपोर्ट है। तकरीबन $25 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। ये कह रहे हैं मईशत अच्छी तरफ जा रही है। इनको मईशत की समझ आए तब ये बोले ना, इनके दिमाग में कोई रिफॉर्म्स हो तब ना, इनके पास कोई पॉलिसी हो तब ना। ये तो जानते ही नहीं है कि रिफॉर्म क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, मुल्क को चलाना क्या होता है। इन्होंने तो हमेशा लूट मार की सियासत की है, और हमेशा जो है नूरा कुश्ती और मुक मुका करके हुकूमत एक दूसरे को दी है और बात खत्म। अभी जो है मर्द कलंदर आया है, अभी मर्द मुजाहिद आया है, जो डटा हुआ है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, मर्द की तरह, शेर की तरह। स्पीकर साहब, मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब, वो जेल में पड़ा है और पूरे सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है। वो कहता है कि कल रोड बंद तो रोड जैम पैक। वो कहता है कल जलसा होगा तो फिर किसी का बाप भी जलसा नहीं रोक सकता। वो कहता है कि एहतजाज होगा तो किसी का बाप भी एहतजाज नहीं रोक सकता। वो कहता है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी आएगी तो पाकिस्तान का नौजवान सड़कों पर है, और ये चीख के बोल रहा है कि तुम्हारे बाप ने भी हमें हकीकी आजादी देनी है और इंशाल्लाह हम छीन के लेंगे तुम लोगों से ये आजादी। स्पीकर साहब, आखिर में मेरे दिल के बहुत करीब अशार उस पर इख्तिताम करूंगा कि वो संग ग्रां जो हायल है, रस्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के राहरू हैं, मंजिल ही पर जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के राहरू है, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से नाज़रीन, आपने सुहेल अफरीदी और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी। अपनी राय का इजहार आपने करना है, आपके मुताबिक किसका मौकफ ज्यादा मजबूत था और किसने बेहतर तरीके से अपने दलाइल पेश किए। नाज़रीन, मेरे ख्याल से दोनों को दलाइल अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। आप ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुन ले, वो भी अपनी जगह ठीक होगा, सुहेल अफरीदी की सुन ले, वो भी अपनी जगह ठीक होगा। हकीकत ये दोनों ही अपनी अपनी हुकूमत में गलत करते रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने भी काफी गलतियां की थी, जो कि मरियम नवाज और उसके वालिद और भी उसके काफी मेंबर थे नून लीग के, जिसको जेल में डाला था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुल्क में एक दूसरे से बदले लिए जा रहे, आप खुद अंदाजा करें। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने इन लोगों को जेल में डाला। अब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला। इमरान खान के काफी मेंबर अभी भी जेल में। सियासी लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा, हालांकि नुकसान सभी का हुआ है। ये भी हकीकत है। इमरान खान की हुकूमत में जितने भी इमरान खान ने इन लोगों पर केस बनाए थे वो अदालत में साबित हुए थे। इन लोगों ने जितने भी बनाए वो अदालत में अभी तक साबित नहीं हुए। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी किया करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।